ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵਸੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਵੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 27 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ, 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੈਲੰਜਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਿਖਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਂਡੇਟ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਏ ਬਿਨਾ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰ ਦਾ ਇਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੀਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲੁਕਆਊਟ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਜ਼ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ। देखो ये बिल्कुल फैसला लिया जाएगा क्योंकि पार्टी इस मामले के उत्ते बड़ी संजीदा है और इस दे उत्ते फैसला जल्द तो जल्द लिया जाएगा। देखो इशू एक दे नाल एक रिलेट किए जा रहे हैं, तुसी इशू सिर्फ एक बंदे दे नाल ना समझो, इशू पूरी पार्टी दे नाल है। इशू अगर ये ना होंदा ते ड्रॉ दे विच निकले हुए बंदे जिहड़े साडे बैठे है, सरदार कश्मीर सिंह जी, सरदार मलकीत सिंह जी, जिन्हां दा राइट बनदा है, इस राइट नूं खोण दे भी गल डायरैक्टर साहब ने की है, सरकारां ने की है, मगर असीं उहदे विच भी कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। सो ਇਹਦਾ भी फैसला जल्द तो जल्द कराने वास्ते उन्होंने बेनती करांगे और अगर फैसला नहीं हो सकता इन्हां दी अगर लिटिगेशन नहीं जाना लंबा पैना है तो असी 49 मैंबरां दे विच भी हाउस बना के सरकार कोर्ट सुनिश्चित करे कि इलैक्शन कराई जाए ताकि प्रबंध तरीके दे नाल चल सकन। जिन्हां दा राइट है, जिहड़े इलैक्शन जित के आए ने, जिन्हां नूं संगत ने फतवा दिता है, वो अपना राइट यूज करके संगत की सेवा दे विच दोबारा लग सकन। बिल्कुल, मैं जिस तरीके दे नाल तुसी आज ही देख लो कि जिस तरीके दे नाल ये प्रबंध शुरू होया, जिस इलैक्शन का सिस्टम शुरू होया, लगातार सरकारां दी इन्वॉल्वमेंट्स हो रही हैं डायरैक्टर दे राही, क्योंकि डायरैक्टर जिहड़ा है उहदी रिपोर्टिंग सीधी LG नूं है और LG साहब किहदे थल्ले आंदे ने, वो केंद्र सरकार की तरफ आंदे ने। जिथे तक चीफ सैकटरी की गल है, यह चीफ मिनिस्टर के थले आंदा है। सो किसी ना किसी तरीके दे नाल इलैक्शनस तो लैके इलैक्शनस तो पहले अकाली दल के सिंबल नूं मारन की गल की गई, उस तो बाद इलैक्शनस नूं रोकन की गल की गई, इलैक्शनस नूं अगे वधाण असीं जाके कोर्टां तो इलैक्शन लड़ी है। सो मैं समझदा कि जिथे जिथे भी असीं अगले स्टैप्स आए ने, असीं कोर्ट राही सानूं रिलैक्सेशन मिली है, मगर सरकारां दी इन्वॉल्वमेंट हमेशा रही है कि इस सिस्टम नूं रोकण वास्ते, इस सिस्टम नूं खराब करन वास्ते और खास तौर पर श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ चलण वास्ते। मेरा आखिरी सवाल है कि सिरसा जी ने कहा है कि वो सिखां दे मसले हल कराउण लई इस मकसद नाल बीजेपी शामिल होए ने, कि तुहाडा दिल नहीं करदा सिखां दे मसले हल कराउण लई? देखो, मैं समझदा कि मैं एक श्रोमणी अकाली दल का वफादार सिपाही हाँ और समूची टीम इत्थे जिहड़ी बैठी है अकाली दल की सिपाही है और जिन्ने मसले अज तक 100 साल का इतिहास है श्रोमणी अकाली दल ने कौम के लिए लड़े हैं और कौम का फैसले कराए ने, शायद किसी ने नहीं कराए। सिरसा साहब की अपनी कोई निजी मजबूरी हो रखी होगी, मगर मैं समझदा कि कौमा हमेशा तगड़िया रह के ही अपने फैसले करा सकती है। सिद्धांतक लड़ाई भी सानू नाल नाल लड़नी चाहिए है। इस तरीके दे नाल सरकारां दे अगे घुटने टेक के असीं कोई भी फैसले नहीं करा सकते और अज असीं सारे तगड़े होके असीं पार्टी दे नाल समर्पित होके इस कमेटी नूं चलाउण वास्ते और कौम दे हर फैसले नूं, हर उस ते आई औकड़ नूं झेलण वास्ते सारे समर्थ हां। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो, बिल्कुल ये तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सी सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी, मगर अगर कोई सिपाही भी जाता है तो बिल्कुल उन्ना ही दुख होंदा है क्योंकि उस सिपाही ने पूरी अपनी तनदेही के नाल इस पार्टी नूं सींचिया होंदा है और इन्ने साल लगातार अगर पार्टी ने सेवा की होंदी तो पार्टी ने भी उन्ना ही मान दिता होंदा है। सो इत्थे जिथे दुख भी होंदा है इस गल का कि इहो जे सिपाही अगर पार्टी छड्ड के जाते हैं, मगर उहदे नाल नाल सानूं ये पहलू भी देखना चाहिए कि पार्टी ने कितना वड्डा उन्हां नूं मान दिता सी, ये उन्हां नूं सोचना चाहिए। निजी तौर ते इहनूं नुकसान मानदे हो, पार्टी दे तौर ते नुकसान मानदे हो, कमेटी दे तौर ते नुकसान मानदे हो? देखो, मैं समझदा कि अकाली दल एक इन्नी वड्डी पार्टी है जिहदे विच बहुत कुर्बानियां भरा इतिहास है। इन्ने वड्डे वड्डे इहदे विच लीडर आए और लीडर चले गए, मगर जान दे अफसोस हर बंदे नूं हुंदा, हर पार्टी प्रधान नूं हुंदा कि उहदा वर्कर, उहदा जिहड़ा नुमाइंदा वो सानूं छड्ड के गया और नुकसान जिहड़ा है मैं तुहानूं पहले भी दस्सिया कि एक सिपाही दे जान दा हुंदा है, ये ते फिर भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान सी। उन्होंने निजी गल दस्सिया, तुहानूं लगदा नहीं कि ये गल तुहाडे नाल उन्हां नूं करनी चाहिए सी बतौर प्रधान एडा बड़ा स्टैप लैण तो पहला? देखो, मैं जब तुहानूं गल कीती कि निजी कारण पिछे फिर पार्टी प्रधान की गल नहीं आ जाती। जे पार्टी लैवल की उन्होंने किसी नाल नाराज़गी होंदी, पार्टी के कौमी प्रधान नाल नाराज़गी होंदी, शायद मेरे नाल सलाह कर लेंदे, मगर उन्होंने अपनी कोई निजी गल्लां इहो जिहियां होईयां होणगीआं जिन्हां दे करके उन्होंने ये स्टैप चुक्या। उन्होंने कोई ना कोई अपना इहदे विच फायदा नज़र आंदा होएगा या उन्होंने कुछ होर चीज़ां नज़र आंदियां होणगीआं जिहदे बारे जवाब सानूं तुहानूं सरदार सिरसा साहब ही दे सकदे।
ਤੁਸੀਂ आप नीजे तौर बता पर रहे हैं कि इलेक्शन में सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, केंद्र सरकार और स्टेट सरकार का। क्या सिरसा साहब को भी वहां जाने में सरकार का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है आपको? देखो, मैंने अभी आपको बताया, ये बातें पर्दे के पीछे हुई है, किसी को नहीं पता। शाम को 4 बजे तक जितने मेंबर यहाँ साहिबान बैठे हैं, इनमें से 90% वहां पर थे और उनको भी नहीं पता था। अब ये बात सरकार के बीच में और सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा के बीच में हुई है, उसको हम तो बोल नहीं सकते। ये काम तो मीडिया का है, मीडिया को देखना चाहिए कि ये काम कैसे हुआ। काका साहब, एक सवाल और है। पहले आपने जीके को चेहरा बनाया, जीके पार्टी से बाहर है, उसके बाद सिरसा है, इलेक्शन में वो चेहरा बने, वो भी पार्टी से बाहर। पार्टी में क्या मतलब, कहीं कुछ प्रॉब्लम है जो इस तरह से आपके सेनापति छोड़ के चले जा रहे हैं? देखो, सबसे पहली बात कि जीके को आज पार्टी का चेहरा नहीं बनाया गया। जीके को पार्टी से इसलिए निकाला गया कि गोलक चोरी के इल्जाम लगे उनके ऊपर। और सिरसा साहब का जो स्टेप है, ये मैंने अभी बताया कि उनका अपना निजी फैसला है। पार्टी में अगर कोई बात होती तो सरदार, उनकी इतनी बड़ी लड़ाई पार्टी आज उनकी नॉमिनेशन के लिए क्यों लड़ रही होती? उनका वो इलेक्शन हारने के बावजूद भी आधे घंटे के अंदर अंदर सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने उनका नाम नॉमिनेट करवाया एसजीपीसी से, और उसकी लड़ाई पिछले 3 महीने से पार्टी लड़ रही है। सो पार्टी के अंदर तो उनके प्रति पूरा स्नेह था, पार्टी ने अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाई है। मैंने अभी बताया, ये उनके अपने कोई निजी कारण है, पार्टी के साथ उनका कोई लेना देना इस मामले में नहीं है। सर, सिरसा साहब पे कई संगीन आरोप लगाए जा रहे थे। माना जा रहा था कि अगर वो भाजपा का दामन नहीं थामते तो उनके ऊपर कई कानूनी कार्रवाई हो सकती थी। ये भय, ये डर के कारण उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया है। आप कैसे दिल सोचते हैं इसको? देखो, मैंने यही बात को बार बार बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आ रहे हैं कि ये उनका निजी फैसला है, ये पार्टी का फैसला नहीं है कि वो पार्टी ने कोई पॉलिसी बनाई है या कोई ऐसी बात है। ये तो सिरसा साहब का अपना निजी फैसला है और वो दबाव के अंदर आए हैं या वो अपनी मर्जी से वहां पर गए हैं अपना आगे का फ्यूचर देखते हुए। ये जवाब वही दे पाएंगे। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि भीतरघात हुई है। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, मैं समझता हूँ कि अपने आप में इतने समर्थ थे कि वो बाकी सीटों के ऊपर भी साथ काम करते रहे हैं। अपनी भीतरघात को देखने के लिए उनके बाद वो पूरे समर्थ थे। काका जी, आरोप ये लगाए जा रहे थे कि वो लगातार गुल्लक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और निजी फायदे के लिए काफी अपने इच्छा के अनुसार काम कर रहे थे। ये भय उनको सता रहा था और इसी भय के कारण उन्होंने ये ऐसा कुछ कदम उठाया है। देखो, इस बात से मैं बिल्कुल भी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि गोलोक का दुर्वर्ते, ये सारी कमेटी हम बैठी है और सारे के सारे इस चीज के जिम्मेवार हैं उनके साथ कि जब से वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बने हैं, सारी कमेटी ने उनके सहयोग के साथ काम किया और ये आरोप लगाए गए जो विरोधियों की तरफ से, उसके ऊपर बातें कोई साबित नहीं कर सकता और ना कोई ऐसी कोई बात हुई है। ये बात तो मन गढ़ंत है कि क्योंकि सरदार मनजीत सिंह जी के ऊपर अपने आरोप लगे हैं, इसलिए वो उसको अपने स्कोर सेटल करने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं, मगर उनके ऊपर कोई भयभीत गुरुद्वारा प्रबंध को लेके 1% भी नहीं था। अगर ऐसी कोई बात होती तो जरूर हमारे साथ मिलकर साझे करते। उनके ऊपर गुरुद्वारा कमेटी को लेके कुछ नहीं था, उनके कोई निजी कारण अलग हो सकते हैं, उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। काका जी, श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि जो उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए हैं मनजिंदर सिंह सिरसा जी, तो उसके लिए दिल्ली के सिख जिम्मेदार हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे केस थे। उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो जेल को चुनना या बीजेपी को चुनना। उन्होंने बीजेपी चुनी है, इस पर क्या कहना है? देखो, सबसे पहली बात कि श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब के बयान के ऊपर मेरा कोई भी बयान बनता ही नहीं है, क्योंकि मैं अकाल तख्त साहब को समर्पित हूँ और जथेदार साहब की कही हुई हर बात मेरे सिर मत्थे पे है और उनका हुक्म है। सो मैं उनके बयान के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं दे सकता। आपका अपना कोई निजी सवाल हो तो मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। ठीक है जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत धन्यवाद लंगर छक के जान की कृपालता करें। काका साहब, सिरसा जी के जाने के बाद क्या आपको उम्मीद है कि पार्टी एकजुट रहेगी दिल्ली में, कि आपके कुछ मेंबर भी जा सकते हैं भाजपा या दूसरे? देखो, ये बहुत अहम सवाल आपने किया, क्योंकि सिरसा जी के जाने के बाद पार्टी का एक एक सिपाही आज सामने खड़ा है। हम 29 के 29 मेंबर, 30वां मेंबर जो नॉमिनी होके आना है आज यहाँ पर खड़े हैं और उसके साथ साथ जो हमारे लॉटरी से निकले हुए, ड्रॉ से निकले हुए 2 मेंबर साहबान ने, सरदार मलकीत सिंह और सरदार कश्मीर सिंह जी, वो भी यहाँ बैठे हैं। यानी कि 32 मेंबर आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आज आपके सामने बैठे हैं और ये सारे के सारे पार्टी को समर्पित है। ना ये सिरसा जी को समर्पित है, ना ये कालका जी को, ना ये केपी जी को, किसी पर्सनल को समर्पित नहीं है। ये शहीदों की जथेबंदी जो 100 साल पुरानी पार्टी है उसको समर्पित सारा परिवार है और ये सारा का सारा एकजुट होकर खड़ा है।
करप्शन के अगेंस्ट में जो कमेटी जो अभी बैठी हुई है, तो सिरसा जी को क्लीन चिट दे रही है कि कोई भी गुरुद्वारा में करप्शन उनके टाइम में नहीं हुआ है। देखो, क्लीन चिट देने का मतलब है ये इसके डॉक्यूमेंट चेक करने, मगर जो जो विरोधियों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं उसको हम बिल्कुल खारिज करते हैं, क्योंकि बैठे बैठाए किसी के ऊपर आरोप लगाना, ये हम सारे उनके साथ कमेटी में काम किया, हमको ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा काम उनके कार्यकाल में खास तौर पे प्रधानगी के समय पे हुआ।